Okay, so these are some reversible reactions which you have to know. Some examples of reversible reactions are these. These reactions have to be learned by you because in numericals the reactions will not be given. Put down these reversible reactions. A reversible reaction is indicated in this way. That is, forward arrow as well as a backward arrow. Both will be shown. Both forward arrow as well as backward arrow will be shown for a reversible reaction. Okay, so these are some reversible reactions. Okay, done. यहाँ तक. हेलो सर. Yes. हाँ सर, मुझे लगा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही. हो गया यहाँ तक लिख के सबका. Yes, sir. Yeah, you have to learn these reversible reactions. इसके लिए बोला मैंने कि पहले लिख लो ये reactions. Okay, fourth. M is any element of group 2 here. That means M could be magnesium, calcium, strontium, barium. The sixth reaction is called Haber's process. ओके, NH4HS का नाम लिखा है यहाँ पे. नाम पता. NH4HS के बदले में I can write as NH4SH also.
Ammonium hydrosulfide. This is the name of NH4HS. Also, it is called ammonium bisulfide. Okay. This reaction is very important. It's called Haber's process. इसको बोलते हैं Haber's process. Another thing is that you must be familiar with the physical states. Bracket में G लिखा है. G means gas. If S is written in brackets, that means it's a solid. If L is written, that means it's a liquid. You have to keep in mind the physical states of all these species involved in the reactions. So these 10 reactions are reversible, which are very commonly used for this chapter. And that is why I asked you to memorize these 10 reactions. Okay, done, यहाँ तक? Okay, let's go ahead. In a chemical reaction which is reversible, जैसे यहाँ पे जितने भी reactions थे सारे के सारे क्या थे? Reversible reactions. So in a reversible chemical reaction taking place in a closed vessel, equilibrium is attained after some time. Closed vessel का मतलब वो vessel close होना चाहिए, मतलब open नहीं होना चाहिए. उस closed vessel के अंदर अगर कोई भी reversible reaction हो रहा है, तो हमेशा after some time equilibrium will be established. What is equilibrium? Equilibrium का मतलब ये होता है कि उस particular reaction में जो आपको forward process दिख रहा है, वो जिस speed से होगा, backward process भी उसी speed से होगा. उस वक्त जब फॉरवर्ड प्रोसेस भी उसी स्पीड से होगा और बैकवर्ड प्रोसेस भी सेम रेट से होगा यदि सेम स्पीड से होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. So at equilibrium, both the forward as well as the backward reactions happen at the same rate, means with the same speed. Rate means speed. I have told you earlier in chemistry, rate is called speed or speed is called rate. So if I say rate, rate means speed. So at equilibrium, both forward and backward reactions happen at the same rate. And for equilibrium, we need a closed vessel. Also, we need a reversible chemical reaction. अगर reversible होगा तो ही forward और backward दोनों होंगे ना. Irreversible होगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगा. तो वही लिखा है यहाँ पे, at equilibrium the rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. Rate मतलब speed. Okay.
So first thing is that we need a reversible chemical reaction. Also, we need a reaction to occur inside a closed vessel, right? Then only equilibrium will be achieved after some time. And what is equilibrium? At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. Since both forward as well as backward reactions occur at the same time, the equilibrium is said to be dynamic in nature. Dynamic का मतलब क्या है? दोनों के दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रुक गया है. No reaction has stopped. Both reactions are happening. But the thing is that the reactions are happening at the same speed. So you feel that the reaction has stopped. ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, बट ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं है. दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हो रहे हैं सेम स्पीड पे, सेम टाइम पे, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक. डायनामिक मतलब कुछ स्टैटिक नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है. सो इट्स डायनामिक. डायनामिक का मीनिंग मतलब रुका हुआ नहीं है. यस, डायनामिक का मतलब होता है जो रुका हुआ नहीं है, चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे दोनों के दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी रुका नहीं है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. So these are the important terms that you have to be familiar with. The terminology is important. So वही लिखा है कि डायनामिक का मतलब ये है कि neither does the forward reaction stop nor does the backward reaction stop. So यही मतलब होता है डायनामिक. डायनामिक का आप अंडरलाइन कर सकते हो डायनामिक वर्ड को, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है. So the word dynamic signifies that both the forward as well as backward reactions continue to happen. Neither of them stops. MCQs में पूछते हैं ऐसे, which of the following statements is correct about chemical equilibrium? Another important characteristic is this. Equilibrium can be achieved from any direction. मतलब क्या इसका? या तो देखो कोई रिएक्शन ऐसा है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने का तरीका क्या है? या तो मैं चालू करूं ए और बी लेके, एक कंटेनर के अंदर मैं ए और बी ले लूं, तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड जहां पे ए, बी और सी तीनों के तीनों रहेंगे. तो ये एक तरीका हो सकता है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं कंटेनर के अंदर सिर्फ सी ले लूं शुरुआत में और फिर कंटेनर को बंद कर दूं. तो आफ्टर सम टाइम सी विल रिमेन, ए आल्सो विल रिमेन एंड बी आल्सो विल रिमेन. तो या तो मैं चालू करूं ऐसे या तो मैं चालू करूं ऐसे, बट आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड डेफिनेटली. ओके, इसके लिए यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज RHS. व्हाट इज RHS? दिस इज RHS and this is LHS. So LHS से भी हम लोग चालू कर सकते हैं, RHS से भी हम लोग रिएक्शन को चालू कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली इक्विलिब्रियम अचीव होगा. यानी दोनों फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस एक स्पीड पे होंगे. So what is LHS? LHS is this side, that is left hand side, and RHS means right hand side. किसके हिसाब से राइट हैंड साइड? ये एरो के हिसाब से राइट हैंड साइड. और एरो का लेफ्ट हैंड साइड कौन है? ये वाला पोर्शन. तो कैसे भी आप चालू कर सकते हो रिएक्शन को,
A प्लस बी लेके चालू करो या C लेके चालू करो, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम जरूर होगा। वही लिखा है यहाँ पे, equilibrium can be achieved from any direction, either from the side of the products or from the side of the reactants. चालू कहां से भी करें, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एट इक्विलिब्रियम कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है, तो ऐसा लगता है हमें कि रिएक्शन रुक चुका है, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहे हैं सेम स्पीड पे, इसके लिए कोई नेट चेंज नहीं है, देयर इज नो नेट चेंज। सिंस देयर इज नो नेट चेंज, जितने मोल से, कॉन्सेंट्रेशन से, जो पार्शियल प्रेशर से, वो सारे के सारे सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे टाइम के साथ। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, then the number of moles of every component remains constant. Similarly, the partial pressure of every component remains constant, and that is why the concentration of every component also remains constant. मतलब क्या, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वापस आपका खुद से कोई चेंज नहीं होने वाला है कॉन्सेंट्रेशन में या मोल्स में या पार्शियल प्रेशर में। Hence we say that at equilibrium the properties remain fixed or constant. Number of moles will remain constant, partial pressure will remain constant, concentration will remain constant. हर कंपोनेंट का, जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रिएक्शन में, हर कंपोनेंट का मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव होने पे। यही बोला गया इस पॉइंट पे। So all these are characteristics of equilibrium. Next point. We have done this already in thermodynamics. At equilibrium, the value of delta G is equal to 0. मतलब क्या, अगर आपको ग्राफ देखना है तो एक ऐसा ग्राफ दिखा देता हूं मैं, ऐसा हो जाता है और मानो ऐसा हुआ, तो इस पॉइंट पे लुक एट द पॉइंट व्हिच आई हैव हाइलाइटेड हियर। इस पॉइंट पे जो G है, ये G है y एक्सिस पे, G है, G वर्सेस टाइम है ग्राफ। व्हाट इज G? G is Gibbs free energy. तो ये जो कर्व है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा आता है प्लॉट। मतलब क्या,
ये जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है, दिस इज इक्विलिब्रियम, ओके। तो एट इक्विलिब्रियम यू कैन सी द डिप, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो g आएगा, दिस g इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ g। मिनिमम वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है। और अगर मैथमेटिक्स को देखें तो अगर कोई चीज मिनिमम है, उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो dg min will be 0, or we can say delta g is equal to 0 at that point. So at equilibrium, the value of Gibbs energy is minimum. That is why we say that delta g is equal to 0. मतलब कोई चेंज नहीं है डेल्टा g का। मतलब क्या है? डेल्टा g अगर 0 है तो मतलब यही है ना कि there is no change in g. There is no change in g, and at that point the value of g is minimum. कभी भी कोई क्वांटिटी मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो याद रखो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो वही है यहाँ पे। So at equilibrium, what can we say? G is G minimum, that is the minimum value of Gibbs energy is attained at equilibrium, and so we say that delta G is equal to 0. बैचेंगे ऐसा ग्राफ देखिए आपको G वर्सेस टाइम का, तो जो मिनिमम पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करेगा। अभी मैंने ऐसा दे दिया तो ऐसा कोई कर्व दे दिया तो फिर से वही करेंगे। ये जो मिनिमम पॉइंट है इस पॉइंट पे G मिनिमम, और इस वक्त जो टाइम है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इस टाइम के पहले इक्विलिब्रियम नहीं है, इस टाइम के बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इस टाइम पे आके इक्विलिब्रियम तक होगा। तो जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तब तक ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ है, करेक्ट। सिमिलरली वी कैन से ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तब तक, एंड एट इक्विलिब्रियम दिस इज 0. व्हाट इज 0? द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज 0, एंड चेंज को कैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं? dg. dg is 0 at equilibrium, and so we say delta g is equal to 0. d के बदले में डेल्टा लिख देंगे फाइनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अभी रिएक्शन अगर कोई है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की बात अगर की जा रही है, देन लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, अब टेंडेंसी ये हो सकती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो, मतलब
रिएक्शन ऐसा हो जहां पे टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, रिएक्शन ऐसा हो जहां पे टेंडेंसी आगे जाने की ज्यादा हो। मतलब क्या, आगे जाने की अगर ज्यादा रहेगी, इसको बोलते हैं आगे, इसको बोलते हैं पीछे। अगर आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा रिएक्शन की, देन एट इक्विलिब्रियम जो ए और बी बचे रहेंगे, एट इक्विलिब्रियम जो ए और बी के क्वांटिटीज रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। मतलब क्या, मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द अमाउंट्स, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए हैज गॉट consumed in the process, but the most of the quantity of A has reacted. Similarly, most of the quantity of B has reacted. तो A और B काफी हद तक रिएक्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा ही अगर इक्विलिब्रियम पे बचा है A और B दोनों, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा आगे जाने की है, यानी इस तरफ जाने की है, फॉरवर्ड जाने की है। This tendency is called extent. ये जो वर्ड है आपको दिख रहा है extent, तो extent का मतलब क्या है? extent का मतलब ये है कि वो किस हद तक आगे जा रहा है या किस हद तक पीछे की ओर है। तो अगर किसी रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है, मतलब वो फॉरवर्ड की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, उसका यही टेंडेंसी उसकी है कि वो फॉरवर्ड की ओर ज्यादा जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि एट इक्विलिब्रियम ए और बी के जो क्वांटिटीज रहेंगे बचे, यानी जो अनरिएक्टेड क्वांटिटीज रहेंगे ए और बी के, दे विल बी वेरी लो, they will be very low, and the quantity of C will be very high because C तो बना है, C is a product। तो एक्सटेंट का मतलब ये है कि अगर एक्सटेंट ज्यादा है किसी रिएक्शन का, उसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई एट इक्विलिब्रियम ए और बी के जो क्वांटिटीज बचे रहेंगे, अनरिएक्टेड क्वांटिटीज, वो काफी कम रहेंगे। ए और बी की जो क्वांटिटीज रहेंगी वो काफी कम रहेंगी और सी की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मैंने उल्टा बोला कि एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज लो, इफ आई से दैट एक्सटेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज लो, देन व्हाट विल हैपन? ए और बी की ज्यादा रहेगी। हाँ, मतलब एट इक्विलिब्रियम ए और बी की क्वांटिटीज ज्यादा लेफ्ट ओवर रहेंगी। व्हाट डज दैट मीन? ज्यादा लेफ्ट ओवर अगर है तो ए और बी की क्वांटिटीज ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। करेक्ट, तो ए और बी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, मतलब वही उस रिएक्शन का नेचर है। तो रिएक्शन का नेचर यानी उसका एक्सटेंट को समझ के काम करना है, देखना है क्या है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट, किस हद तक हो रहा है आगे या किस हद तक वो पीछे की ओर ज्यादा ड्रिफ्टेड है। So based on the extent to which a reaction proceeds to reach the state of equilibrium, reactions may be classified into 3 categories. क्या होंगे 3 categories? एक ऐसा रहेगा जहाँ पे एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, एक ऐसे टाइप का रिएक्शन रहेगा जहाँ पे एक्सटेंट बहुत कम है, और एक ऐसा रहेगा जहाँ पे एक्सटेंट मॉडरेट हो। That is why there are 3 categories of reactions based on the extent. मॉडरेट मतलब दोनों का इक्वल? इक्वल नहीं, इक्वल मत बोलो, मतलब आप दोनों का ही मतलब कंपेरेबल है कि दोनों का ही रेंज सेम है। रेंज मतलब क्या? ऑर्डर टाइम, मतलब अगर इसका 0.1 है, इसका भी हो सकता है कि 0.02, इसका सी का होगा 0.3, मतलब ये सब कंपेरेबल वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत ज्यादा और किसी का बहुत कम है। बट अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो मतलब ए का मानो इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी बचा है 0.00001, बी का क्वांटिटी बचा है 0.00002 और सी का क्वांटिटी है 0.4। मतलब क्या है इसका?
एक्सटेंड ज्यादा है। एक्सटेंड फॉरवर्ड का ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन हाईली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन है। होगा दोनों ही, ऐसा नहीं कि बैकवर्ड नहीं हो रहा है, बट उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि फॉरवर्ड को ज्यादा फेवर कर रहा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। So वही अभी let's see the categories. So based on the extent to which a reaction proceeds to reach the state of equilibrium, reactions may be classified into three categories. First, this is the first category. इसका मतलब क्या है? First category में reactions that proceed to completion. Proceed to completion का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट C की बात कर रहे हैं, वो C बहुत ज्यादा है, C की जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम पे वो बहुत ज्यादा है A और B के कंपैरिजन में। उसको बोलते हैं द रिएक्शंस दैट प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब वो ऑलमोस्ट A और B के मोल्स कंज्यूम हो चुके हैं, थोड़े से ही A और B के मोल्स बचे हैं। उसको बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, and so we say that the reactions that proceed to completion have got a very high extent of reaction. Okay. The reactions that proceed to completion का मतलब ये होता है कि जिसका extent बहुत ज्यादा होता है। So in such reactions, equilibrium is achieved when extent of reaction is very high, and hence large quantities of products are obtained and small quantities of reactants are left behind. यही मेन बात है यहाँ पे। ओके, हाँ, तो द रिएक्शंस दैट प्रोसीड टू कंप्लीशन का मतलब क्या है? एक्सटेंट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। मतलब एक्सटेंट इज हाई। ठीक है, वेरी गुड। तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा क्या सर आप रिपीट करेंगे? सो आस्किंग कि अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है देन प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम दैट विल बी हाई और लो? हाई। वेरी हाई और हाँ हाई, चलो करेक्ट। जो अनरिएक्टेड अमाउंट्स रहेंगे रिएक्टेंट्स के वो ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? कम। हाँ, तो जो अनरिएक्टेड अमाउंट्स है रिएक्टेंट्स के वो अगर कम रहेंगे तो मतलब एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज हाई। तो वैसे ही हम लोग अभी देखेंगे सेकंड कैटेगरी। यह फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? इन सच रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, हेंस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड and small quantities of reactants are left, and this word is extremely important, so I'm underlining this. And ऐसे reactions के लिए the value of equilibrium constant is very high. What is equilibrium constant? वो हम लोग देखेंगे after some time. So the value of equilibrium constant is very high for such reactions. Which reactions? Reactions where extent is more.
ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है द रिएक्शंस दैट प्रोसीड टू कंप्लीशन। सेकंड कैटेगरी, the reactions which proceed to a small extent to yield products, extent कम है, मतलब क्या है, उसका नेचर ही वैसा है कि वो इक्विलिब्रियम पे आके जितना हमको दिखेगा प्रोडक्ट वो काफी कम रहेगा और जो रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे वो काफी ज्यादा रहेंगे। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब क्या है, वो कंज्यूम नहीं हुए हैं। So in such reactions, equilibrium is achieved when small quantities of products are formed and large quantities of reactants are left unreacted. Extent कम है. So in such reactions, equilibrium is achieved when small quantities of products are formed and large quantities of reactants are left unreacted. The value of equilibrium constant is very low for these reactions. Obviously, low होगा. The value of equilibrium constant will be low for such reactions. थर्ड कैटेगरी क्या होगा? थर्ड कैटेगरी ये होगा थर्ड कैटेगरी। जैसे मैंने बोला इक्वल मत बोल देना, यहाँ पे क्या बोलना है आपको? Moderate. Comparable बोलो। In these reactions, the quantities of reactants as well as products are comparable. Comparable कहाँ पे लिखना पड़ेगा? At equilibrium. सर ये इनऑर्गेनिक का है ना? नहीं नहीं, फिजिकल न्यूमेरिकल्स है ना। हाँ फिजिकल, अच्छा हाँ फिजिकल है, ओके। अभी इनऑर्गेनिक नहीं होगा, अभी फिजिकल चलेगा काफी देर तक, उसके बाद ऑर्गेनिक चलो जाएगा। ओके, एक नोट है,
एक्सटेंट चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक्सटेंट हमेशा फिक्स्ड होगा। Okay. This is one thing which we will deal with later. हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रोसेस के लिए भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ फिजिकल प्रोसेस एज वेल। मींस फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium में chemical reaction is happening. If there is no chemical reaction at all, still there is equilibrium for a process, then we call it physical equilibrium. So such an equilibrium is called physical equilibrium. Physical क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी chemical reaction नहीं हो रहा है। And a physical equilibrium is also dynamic. वो भी dynamic है क्योंकि उसमें भी forward और backward processes दोनों के दोनों हो रहे हैं, सेम स्पीड पे हो रहे हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। तो डायनामिक बोलना पड़ेगा फिर से। डायनामिक का मतलब क्या है? बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड प्रोसेसेस हैपन एट द सेम टाइम। So during physical equilibrium, rate of forward process is equal to the rate of backward process. That part is same again. Examples of physical equilibrium. यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, देखो। सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड, लिक्विड चेंजिंग टू सॉलिड, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ फेज। तो ये भी इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स है, लेकिन ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। S stands for solid, L stands for liquid, and G stands for gas. So all these are change of phase.
Okay. So now we start with the law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? कोई भी रिएक्शन का रेट, कोई भी रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड, the rate at which a reactant is consumed is proportional to its active mass raised to an exponent. This is a law of mass action. So I'll explain the meaning. First, this is the theoretical thing. The rate at which any reactant is consumed is directly proportional to its active mass raised to an exponent. Now, what is active mass? That's what we'll do. तो ऐसा है, rate is directly proportional to active mass raised to the power of something, n, or let's say x. This is called law of mass action. अगर कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो उसका रेट क्या है, किस रेट से वो कंज्यूम हो रहा है, यानी किस रेट से वो रिएक्ट हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास रेज्ड टू द पावर ऑफ x. ओके, अब जाते हैं आगे थोड़ा समझने के लिए. फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन में, एक ही स्टेप इन्वॉल्व है. So for an elementary reaction, the law of mass action states that the rate of the reaction is proportional to, when I say proportional, मतलब directly proportional. So the rate of the reaction is proportional to the product of active masses of the reactants. Product of active masses. Product मतलब क्या? Multiplication. So product of active masses of the reactants with each active mass raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of the species. मतलब क्या है इसका? सिंपल वर्ड्स में अगर देखना है तो यहाँ पे देखते हैं. अगर कोई रिएक्शन है यहाँ पे A plus 2B giving C, and let's say this is a reversible reaction. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, लेट मी बी प्रिसाइज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन दिख रहा है आपको वो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. Directly proportional to A raised to 1 B raised to 2. What is square bracket? ब्रैकेट का मतलब होता है concentration. क्या मतलब होता है? Concentration. What is concentration? Concentration is moles per liter. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है, अगर मैं सिर्फ बोलूं स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power of 1. Why to the power of 1? Because coefficient stoichiometric का यहाँ पे 1 है, देखो तो 1, और B का coefficient 2 है, तो इसके लिए raised to 2. The rate of forward reaction will be directly proportional to concentration of A to the power of 1 multiplied by concentration of B to the power of 2. What is concentration? Moles per liter. अगर मैं बोलूं कि फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो कैसे बोलेंगे? How do I write rate of backward reaction? Inversely proportional to the नहीं, same. वैसे
नॉट दैट वे। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब इसको देख रहे हो ना तब। तो C is giving A and 2B, that is your backward reaction, right? तो क्या लिखना है? Concentration of C e raised to 1. to the power of 1. This will be the rate of backward reaction. तो ये जो लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सिंपल टर्म्स में ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो भाई यहाँ पे लिखा है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब क्या, सिंगल स्टेप। देखो यहाँ पे एक ही स्टेप है, ए और बी मिला कैसे दे रहे हैं, तो एक ही स्टेप है ना, बीच में और कुछ नहीं है। So for a single step reaction, the law of mass action states that the rate of the reaction is proportional to the product of active masses of the reactants. And each active mass raised should be raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of the species. तो एक्टिव मास का मतलब यहाँ पे क्या है फिर, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट्स का। This means moles per liter. तो अब जाते हैं यहाँ पे। For dilute solutions and all questions related to chemistry, active mass is equal to concentration in moles per liter. तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। Henceforth we will use this notation for denoting concentration in moles per liter. इसका मतलब concentration moles- of A, हाँ मोल्स पर लीटर मतलब मोलैरिटी हुआ ना यहाँ। मोलारिटी हुआ, लेकिन मोलारिटी इज फॉर एक्वस सॉल्यूशंस एंड लिक्विड्स। यहाँ पे हम लोग गैसेस के साथ डील कर रहे हैं इसके। ओके सर। तो मोलारिटी नहीं बोलना है यहाँ पे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही बोलो, या एक्टिव मास भी बोल सकते हो। So, इसका मतलब क्या होगा, मोल्स पर लीटर ऑफ ए, ऐसा लिख दिया, मतलब मोल्स पर लीटर ऑफ बी, ऐसा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं हम लोग मोल्स पर लीटर। इस चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। हाँ, लीटर के बदले में you can write dm cube also because 1 liter is equal to 1 dm cube. तो या तो आप लीटर लिखो या फिर आप dm cube लिखो, बात तो एक ही है ना। चलो अभी समझ में आ जाएगा, वही मैंने जो लिखा था। For a reversible reaction shown in this manner. अब देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स है, कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर आल्सो द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी जो रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं, उस रिएक्शन के अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं स्पीशीज के आगे, उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। So according to the law of mass action, I can write the following expressions. Rate of forward reaction is equal to Kf into concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Similarly, rate of backward reaction can be written in this manner. अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के बदले में इक्वल टू डाल दूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, right? If I say x is proportional to y, that means x will be equal to some constant into y. This is the mathematical conversion from, if you want to convert this sign to this sign. Correct? If x is directly proportional to y, then x is equal to ky, where k is some constant. तो अगर मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है और इक्वल टू डालना है तो एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, which is k in this case. तो वही लिखा है यहाँ पे, rate of forward reaction is equal to kf into
concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Kf is a constant of proportionality and that Kf is denoting my rate constant because मैं यहाँ पे rate लिख रहा हूँ. तो forward reaction का जो rate होगा उसको लिखने का यही तरीका है कि rate is equal to rate constant multiplied by active mass raised to stoichiometric coefficient. Similarly, Kb लिखेंगे backward reaction को denote करने के लिए. Okay, now at equilibrium क्या होता है? दोनों का रेट सेम होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का. That is why we call it equilibrium. I can equate these two at equilibrium. Correct. At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction, and so I've equated the two rates. On rearranging this equation ऐसा मिलेगा और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा जाता है. Kf upon Kb is written as capital K and with a subscript C. Okay. Kf upon Kb को क्या लिखा जाता है? Capital K with a subscript C. What is this called? अब देखो ध्यान से, यहाँ से चालू होता है हमारा मैथमेटिकल पोर्शन. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Kc लिखा है. Kc का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है. तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा. Kc का कोई भी रिएक्शन के लिए Kc पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे Kc क्या है? Kc is called equilibrium constant. Okay, this is called equilibrium constant. और ये C, D, A, B के कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है. लेकिन सिर्फ इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वही लेने हैं, उसके पहले का नहीं, क्योंकि Kc is denoting equilibrium constant. So the concentrations of species involved also should denote equilibrium values. Right. और हर एक का देखो पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए. और एक क्या है? और एक ये है कि Kc का जो एक्सप्रेशन है वहां पे जो न्यूमरेटर का पोर्शन है, दिस इज द न्यूमरेटर. द न्यूमरेटर हैज व्हाट? द न्यूमरेटर हैज द स्पीशीज व्हिच आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. मतलब C और D कहां थे? C और D राइट हैंड साइड पे थे. और A और B कहां थे? A और B लेफ्ट हैंड साइड पे थे. तो C और D ऊपर है, यानी न्यूमरेटर में है. तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ऊपर रहते हैं. जो रिएक्टेंट्स है उनके कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में रहते हैं. राइट. सो A, B, C, D आर इन मोल्स पर लीटर. पहली बात तो ये सबको पता है. रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड Kf. ये जो स्मॉल Kf लिखा था यहाँ पे, what is this? This is called rate constant for forward reaction. Small f stands for forward. Similarly, Kb जो लिखा है, Kb will correspond to rate constant for backward reaction. यहाँ पे Kb लिखा है ना. This Kb will correspond to rate constant of backward reaction.
So can I say Kc, that is equilibrium constant, is nothing but the ratio of the rate constants? Yes. So equilibrium constant का definition क्या है? It is a ratio of the rate constants. कौन से rate constants? These are the rate constants. और एक चीज याद रखो, स्मॉल के आप यूज करते हो रेट कांस्टेंट के लिए, कैपिटल के आप यूज करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. स्मॉल के इज corresponding to rate constant, capital K is corresponding to equilibrium constant. ओके तो उल्टा मत कर देना, ये दोनों के लिए कैपिटल लिख दिया, दोनों के लिए ही स्मॉल लिख दिया, that will not do. Small k means rate constant, capital K means equilibrium constant. ओके और केसी का एक्सप्रेशन क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में यू हैव प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव द रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस. लेकिन हर कॉन्सेंट्रेशन को उसके पावर में कोएफिशिएंट डालना जरूरी है. सो मोल्स पर लीटर में लिख रहे हैं हम लोग. जब केसी यूज करेंगे तब मोल्स पर लीटर में लेना है कॉन्सेंट्रेशन. और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये द यूनिट ऑफ केसी इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. देखो क्या है, अगर मैंने कोई रिएक्शन लिया इस टाइप का a प्लस बी गिवन 2c, तो इसके केसी के यूनिट्स क्या होंगे? यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर c स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा, a और b, ऐसा रहेगा. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर केसी. करेक्ट. नाउ यूनिट्स डालो, मोल्स पर लीटर है हर एक का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, मोल्स पर लीटर होल स्क्वायर ऊपर आएगा सी के लिए, सी स्क्वायर के लिए, और नीचे आएगा मोल्स पर लीटर, और ये भी मोल्स पर लीटर. तो क्या आएगा, यूनिट कट गया पूरा, तो कोई यूनिट नहीं आया इस रिएक्शन के किसी का. करेक्ट. एनी डाउट? तो फिर वो यूनिटलेस है. तो वो यूनिटलेस हो गया इस केस में. लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन लिया जहां पे ऐसा है P प्लस क्यू गिविंग R, 2P प्लस क्यू गिविंग R, अगर ऐसा कोई रिएक्शन है तो क्या होगा, Kc will be what, concentration of R to the power of 1 upon concentration of P to the power of 2 into concentration of Q to the power of 1, ऐसा आएगा. डालो यूनिट्स. सो मोल्स पर लीटर R का, P का भी वही होगा, मोल्स पर लीटर, लेकिन स्क्वायर है, P का कोएफिशिएंट 2 है. ये Q के लिए डाला, ऐसा हो गया. ये और ये कट गए, तो क्या बच रहे हैं, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ -2. ये हो जाएगा यूनिट केसी का इस रिएक्शन का. तो कहने का मतलब ये है, द यूनिट ऑफ केसी इज नॉट फिक्स्ड, इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्शन एंड द कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्वड इन दैट रिएक्शन. तो यूनिट नहीं है किसी का कोई फिक्स्ड कि कौन सा यूनिट होगा. राइट. वही बोला यहाँ पे, the unit of Kc is not fixed, it depends on the stoichiometric coefficients. Okay. Rf is equal to rate for the forward reaction.
तो उसको लिखा ऑलरेडी हम लोगों ने, स्मॉल kf into concentration of A to the power of A into concentration of B to the power of B, हो जाएगा आपका RF. RF is called rate of forward reaction. Similarly, RB will be the rate of the backward reaction. ओके, अब RF अगर RB से ज्यादा है, मतलब अब तक इक्विलिब्रियम तक पहुंचे नहीं है हम लोग, रिएक्शन मानो चल रहा है लेकिन अभी तक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है, तो ऐसा केस है, मतलब RF इज मोर देन RB, मतलब क्या हुआ, द नेट रिएक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ RF इज मोर देन RB, then the net reaction will be in the forward direction. इसलिए क्यों, क्योंकि RF ज्यादा है RB से, तो हो तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन RF ज्यादा हो जाने की वजह से आपको जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि एज इफ रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है. वैसे ही अगर RB ज्यादा हो गया RF से, then the net reaction will be in the backward direction. Extent is less. नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हम लोग बोल रहे हैं अब तक, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है अब तक. अच्छा, मतलब अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव होना बाकी है. हाँ, इक्विलिब्रियम पे तो RB will be equal to RF ना. हाँ. तो अब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, तब की बात कर रहे हैं. मे भी रिएक्शन को 15 मिनट चाहिए इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के लिए, तो हम लोग अगर 8 मिनट या 10 मिनट पे देख रहे हैं तो क्या है, दैट वे. And yes, if RF is equal to RB, the reaction is at equilibrium. Kc सीखा हम लोगों ने, Kc कैसे लिखते हैं. Kc is equilibrium constant when concentrations of species are used. मतलब मोल्स पर लीटर जब आप यूज कर रहे हो तब उसको Kc बोलते हैं. और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको प्रेशर्स के टर्म्स में लिखना है तो उसको Kp बोलेंगे. So Kp is equilibrium constant when partial pressures of gaseous species are used. The unit of Kp is not fixed. Okay. ना ही Kc की यूनिट्स फिक्स्ड है, ना ही Kp की यूनिट्स फिक्स्ड है. तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन है तो इसका Kp कैसे लिखेंगे, वापस न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ही रहेगा. तो Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power of 1 upon partial pressure of A to the power of 1 into partial pressure of B to the power of 2. ऐसा हो जाएगा Kp का एक्सप्रेशन. और हमेशा याद रखो इस चैप्टर में जब पार्शियल प्रेशर्स आप ले रहे हो, then the partial pressures have to be in ATM by default. Okay, all partial pressures need to be in ATM in this chapter.
Okay. So if you have a reaction of this kind, A plus B giving C and D, तो उसके लिए Kp ऐसे लिखेंगे, स्मॉल p डिनोट्स पार्शियल प्रेशर, मतलब सिर्फ उस गैस का क्या प्रेशर है। यहाँ पे भी आपको हर पार्शियल प्रेशर को उसके कोएफिशिएंट जो है उससे रेज करना है पावर में। So this is going to be the expression for Kp. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे है, इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं इस वाले कंसेप्ट में। आपको तरह तरह के ऑप्शंस दिखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस विल ट्राई टू कंफ्यूज यू इन मल्टीपल वेज, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस 12th पॉइंट ऑलवेज। If you keep this in mind, you will never go wrong, because questions will always try to confuse you. So Kc as well as Kp depend only on temperature, मतलब और ऐसा कोई नहीं है फैक्टर जो उसको चेंज कर सके। तो आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं तरह तरह की चीजें बता के, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, Kc and Kp depend only on temperature. So if you keep the temperature same, Kc and Kp will also remain the same. So Kc and Kp do not change with any change in pressure or concentration. So very very important point, और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं काफी सारे, एंड मेनी स्टूडेंट्स गो रॉन्ग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। वो लोग Kc और Kp को चेंज कर देते हैं, उनको लगता है कि अगर प्रेशर चेंज हो गया तो Kp चेंज हो जाएगा, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो Kc चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। Kc and Kp depend only on temperature. So temperature चेंज होगा तो ही चेंज होगा Kc या Kp, और नहीं तो नहीं। So this is one thing which you have to remember always when we are solving questions on chemical equilibrium. This already we have done when we are doing extent of reaction. सर एक बार वापस 12th पॉइंट दिखा। ओके सर। So we have done this when we were discussing extent of reaction. If Kc or Kp is very high, then the formation of products is highly favored. That means the equilibrium is shifted towards the right. मतलब at equilibrium, the quantity of product is going to be very high, and the quantity of leftover reactants is going to be very low. तो Kc या Kp को देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन का टेंडेंसी क्या है, मतलब ज्यादा रिएक्टेंट्स लेफ्ट ओवर है या बहुत ही कम रिएक्टेंट्स लेफ्ट ओवर रहेंगे इक्विलिब्रियम पे। ये बताने के लिए Kc या Kp का वैल्यू देख के आप समझ जाओगे। Kc या Kp अगर बहुत ज्यादा है, दैट मींस प्रोडक्ट्स ज्यादा रहेंगे और रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट ओवर रहेंगे वो काफी कम रहेंगे, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज हाई। और अगर उल्टा हो गया कि Kc या Kp बहुत छोटा है, मतलब जो राइट हैंड साइड पे चीज लिखी है रिएक्शन में, उस कंपोनेंट के मोल्स काफी कम रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, और जो लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स रिएक्टेंट्स के मोल्स रहेंगे वो काफी ज्यादा रहेंगे।
RHS का मतलब होता है एरो के हिसाब से राइट, और LHS का मतलब होता है एरो के हिसाब से लेफ्ट। तो अगर केसी या केपी बहुत छोटा रहा मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन का एक्सटेंट कम है, मतलब जो रिएक्टेंट से वो लेफ्ट ओवर जो रहेंगे वो काफी ज्यादा अमाउंट में लेफ्ट ओवर रहेंगे, और जो प्रोडक्ट रहेगा वो काफी कम अमाउंट में फॉर्म होगा। Okay. Next. This will be useful to us when we are solving numericals. This 15th point. Solids and liquids do not occupy entire volume of the container. मतलब क्या है यहाँ पे? आप कोई कंटेनर के अंदर गैस ले रहे हो, तो गैस तो फ्री है, molecules are free to move throughout. So whatever space is available inside the container is actually free. It is actually going to be occupied by the molecules of gas, because the gas molecules can randomly move in different directions inside the container. तो पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो गैस के लिए अवेलेबल है। सो द कंटेनर का वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, बट सच इज नॉट द केस विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप कोई सॉलिड डाल दो कोई कंटेनर के अंदर, तो सॉलिड तो अपना एक फिक्स वॉल्यूम जो है वही ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा कंटेनर के अंदर वो फैल जाएगा। सिमिलरली लिक्विड के लिए भी वही है, जितना लिक्विड उसका खुद का वॉल्यूम है, 50 ml डाला है कंटेनर के अंदर, तो 50 ml ही रहेगा कंटेनर में डालने के बाद भी। ऐसा तो नहीं होगा कि 50 ml से अचानक वो 100 ml बन जाएगा क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है, या कंटेनर अगर 2 लीटर का है तो अचानक वो 50 ml से 200 ml बन जाएगा या 2000 ml बन जाएगा। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, अनलाइक गैसेस, because gases can occupy the full volume of the container. तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि solids and liquids do not occupy entire volume of the container in which they have been kept, and hence their active masses remain constant during the reaction. क्योंकि active mass होता क्या है? अब active mass क्या होता है ना, moles per liter। अब ये जो लीटर लोगे आप, अब इस वक्त थोड़ी आप वॉल्यूम कंटेनर लोगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो नहीं लोगे अभी ना, अभी क्या लोगे? उसका खुद का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है, करेक्ट। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉलिड या मोल्स ऑफ लिक्विड जो है वो लोगे। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। कैसे कांस्टेंट वैल्यू होगा देखते हैं सर। तो फिर जब गैस लेते हैं तभी वो जो आपने बोला कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, वो तो बस आइडियल गैस के लिए लेते हैं। हाँ, तो ऑल गैसेस आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल इन केमिस्ट्री।
Okay, sir. unless mentioned otherwise. This I have to do in thermodynamics also. सर मतलब इसमें रियल गैस नहीं आएगा? No. ओके सर. रियल गैस है तो भी हम लोग सारे कैलकुलेशंस आइडियल गैस मान के ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं होता है. So, solids and liquids do not occupy the entire volume of container. तो solid और liquid का अपना एक खुद का वॉल्यूम होता है. तब देखते क्या है. Because of this thing, you have to keep in mind. So, concentrations of pure solids and pure liquids are not included in the expression for Kc. आप जब Kc लिखते हो, तो Kc में solid या liquid को include नहीं करना है. वही यहाँ पे बोला गया है. क्यों? Because solid या liquid का अपना कोई वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं, तो उसको इसलिए पूरा एक कांस्टेंट मान के उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं. So the concentration of pure solid is not taken into consideration while you are writing the expression for Kc. Similarly, the concentration of a liquid is also ignored completely when you are writing the expression for Kc. तो जो Kc और Kc का वैल्यू आप जब निकालोगे, तब आप सॉलिड्स और लिक्विड्स को इग्नोर करके निकालोगे. सिर्फ रिएक्शन में जो गैसेस है उनको आप लोगे और फिर निकालोगे. Now let us consider one example. तब को क्लियर हो जाना चाहिए. Okay. So concentrations of pure solids and liquids are not included in the expression for Kc. Let us consider one example. ये वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पर रिएक्शन में दो सॉलिड्स और एक गैस है. अगर मैं एक्टिव मास निकालूं CaO का, तो एक्टिव मास का फॉर्मूला ये होता है ना, मोल्स अपॉन लीटर्स या मोल्स अपॉन वॉल्यूम. लेकिन ये सॉलिड है CaO. सॉलिड है तो उसका अपना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो नहीं ले सकते. सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो ऐसा लेंगे हम लोग, लिखेंगे CaO का जो एक्सप्रेशन है, CaO के मास एक्टिव मास का जो एक्सप्रेशन है वो ये रहेगा, moles of CaO upon volume of CaO. I can simplify this in this manner. Moles को I can write mass upon molar mass. तो ऐसा आ जाएगा. अब mass upon volume, ये पूरी चीज डेंसिटी होती है, तो ऐसा हो जाएगा. अब डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है किसी भी चीज की, मोलर मास भी कांस्टेंट होता है, तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास इज आल्सो कांस्टेंट, which means the active mass of CaO is a constant value and hence we ignore it completely. तो कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड होता है तो उसका ऐसा ही आएगा, सेम होगा, इसका डेंसिटी अपॉन मोलर मास हो जाएगा उसका एक्टिव मास. और डेंसिटी और मोलर मास दोनों कांस्टेंट्स होते हैं किसी भी सॉलिड के लिए या किसी भी लिक्विड के लिए. दैट इज व्हाई वी इग्नोर the solids and liquids when we write Kc. Okay. Hence we ignore pure solids and liquids in the expression for Kc. क्योंकि वो तो चेंज होने वाला है ही नहीं, तो उसको फिर पूरी तरह से छोड़ दो. Okay.
ओके नेक्स्ट, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है? अगर कन्वर्ट करना है केपी को केसी में या केसी को केपी में तो कैसे करेंगे? So let us see. Consider the following reaction where A and B are the reactants and C and D are the products. Now I can apply ideal gas equation. PV is equal to nRT for every particular gas. तो partial pressure हो जाएगा PA, partial pressure PB will be for B, partial pressure PC will be the partial pressure of C, and PD will be the partial pressure of D. PA, PB, PC, and PD are the partial pressures of A, B, C, and D respectively. Temperature is T, R is gas constant, or Na, Nb, Nc, Nd. They are the moles of A, B, C, and D respectively. Capital V is the volume of container. सारे के सारे gases लिए गए हैं इस particular reaction में. So volume is constant. Volume वही है ना जो container का volume है. और ये सब इक्विलिब्रियम पे हम लोग देख रहे हैं. तो जो PB, PA, PB, PC, PD है, these are the values at equilibrium. यानी जो moles है, moles जो है Na, Nb, Nc and Nd, they are the moles at equilibrium. मतलब सर मोल्स भी कांस्टेंट हुए फिर तो इक्विलिब्रियम पे है तो। हाँ 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 हाँ, Na नहीं रहेगा, Na का वैल्यू चेंज नहीं होगा. सिमिलरली Nb भी Nb रहेगा. हर एक कंपोनेंट के जो मोल्स है ना वो इक्विलिब्रियम पे फिक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद चेंज नहीं होने वाले हैं एक बार इक्विलिब्रियम हो चुका है तो. तो फिर सर टेम्परेचर ही बस यहाँ पे ये मतलब चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना. टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो फिर सर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आएगा फिर। नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सब- चेंज नहीं हो रहा है ना. टेम्परेचर कहाँ चेंज हो रहा है? हाँ सर, तो फिर प्रेशर तो फिर मतलब ये सब यही आ गया, कांस्टेंट ही आ गया। हाँ कांस्टेंट ही तो है ना, इक्विलिब्रियम पे सब कांस्टेंट ही रहता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, राइट? अच्छा हाँ, सब तो कांस्टेंट ही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले हैं. दीज आर ऑल कांस्टेंट वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम. मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है, अगर एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है उसके बाद कोई चेंज होता नहीं है. जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचे तब तक चेंजेस होते हैं. ओके सर। लाइक आई सेड, अगर 15 मिनट चाहिए इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए तो उसके पहले जो भी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं वैल्यूज 15 मिनट तक. एक बार 15 मिनट हो गया उसके बाद कोई चेंज नहीं होने वाला है. Now put the values rather in Kp. Put the values in Kp. Kp का एक्सप्रेशन आपको पता है, पहले Kp हम लोग कर चुके हैं. ओके, वैल्यूज डाल दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर पी आई, पी बी, पी सी और पी डी के.
एक्सप्रेशन में? ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। Is this clear, this conversion? This thing is nothing but this thing, right? Similarly, this thing is nothing but this. Abhi, can I say this is moles per liter, moles per liter, moles per liter, moles per liter? सबके सब Yes, moles per sir. liter भी है ना? और to the power of coefficients भी है. So can I say this entire thing is nothing but equal to Kc? ये Kc हो गया? Kc तो वही होता है ना? Moles per liter of C, then moles per liter of D and so on. ऐसा हो गया फिर। डेल्टा एन जी क्या है? वही है जो थर्मोडायनामिक्स में किया था, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, वही है C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, हो गया डेल्टा एन जी। Sum of coefficients of products minus sum of coefficients of reactants, delta Ng. But then only gases are to be taken, solids and liquids are ignored. Any doubt? Tell me, when will Kp be equal to Kc? When the coefficients of products and reactants will be equal, मतलब जो डेल्टा एन जी का जो ये वैल्यू है वो 0 आएगा तब।
हाँ, डेल्टा एन जी 0 होगा बस, और कुछ बोल नहीं सकते इसके आगे। डेल्टा एन जी 0 होगा तो कैसे होगा? केपी इक्वल टू केसी, सिंपल ना, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी, डेल्टा एन जी 0 डाल दो, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, आ गया केपी इक्वल टू केसी। केपी और केसी तभी सेम होंगे जब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, नॉट अदरवाइज। ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, केपी और केसी के बीच का रिलेशन। बोथ केपी एंड केसी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, बट डिफरेंस क्या है? एक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स है और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर है, इतना ही फर्क है। एक आप पार्शियल प्रेशर लेते हो केपी में, और केसी में आप सबके सब मोल्स पर लीटर में लेते हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। So you have to keep this in mind. Kp is equal to Kc into RT to the power of delta Ng. This expression has to be kept in mind. Now, next part, ये basics थे, terminology थी. Now let us look at some graphs. Exam में पूछते हैं, which of these represents the correct graph? तो पहले ये देख लो, क्या है यहाँ पे लिया है हम लोगों ने? We have taken a reversible reaction A given B, where both are gases. तो कुछ ग्राफ देखते हैं अभी. रेट वर्सेस टाइम प्लॉट. रेट वर्सेस टाइम प्लॉट मतलब क्या? y एक्सिस पे रेट रहेगा और x एक्सिस पे टाइम रहेगा. वर्सेस के पहले जो होता है वो y एक्सिस के अलॉन्ग रहता है. दिस विल बी द रेट वर्सेस टाइम प्लॉट. क्यों ऐसा? नाउ सी, जब रिएक्शन आप चालू कर रहे हो ना, ये वाला, तो A गिविंग B अगर लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट याद रखो, क्वेश्चन में अगर इतना लिखा है मतलब स्टार्टिंग में कंटेनर में सिर्फ A था. मतलब आप रिएक्शन जब चालू कर रहे हो तब कोई B नहीं था. सो इनिशियली यू हैड जस्ट A. धीरे धीरे फिर B बनता गया, बट इनिशियली देयर वाज ओनली A. अगर शुरुआत में सिर्फ A था, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ A था, तो ऑब्वियसली जब आपका, मैं बोलूंगा कि चालू हो रहा है रिएक्शन, तब जो रेट होगा वो क्या होगा? ऐसा होगा, यानी फॉरवर्ड में होगा. करेक्ट? क्योंकि शुरुआत में तो बी है ही नहीं ना. तो अब बताओ मुझे, इन दोनों में से ऊपर वाला ये कर्व है और एक नीचे वाला कर्व है. देयर आर टू कर्व्स. एक कर्व रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा कर्व रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. My question to you is, which curve represents rate of forward reaction? Upper one or lower one? And why? Which curve represents rate of forward reaction? सर नीचे वाला, डाउनवर्ड्स. Downward represents what? फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. Why? डाउनवर्ड मतलब जो नीचे वाला ग्राफ है. तो क्योंकि ए जब इनिशियली सिर्फ ए था, बी नहीं था, तो ए से स्टार्ट जब हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट धीरे धीरे बढ़ता गया अनलेस इट रेट तो रीच. कम होगा ना. रेट बढ़ेगा कैसे? रेट तो कम हो जाएगा ना. अगर रिएक्शन चालू हो चुका है इस डायरेक्शन में, तो ये सोचो ना, अभी तुम जब चालू किया तो ए, अब ए चलता गया, अब बी बनना चालू हो गया, तो बी भी तो चालू कर देगा ना अपना रिवर्स रिएक्शन. इसका मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब ए और बी के रेट्स बराबर हो जाए.
यानी ए का कम होता जाएगा और बी का बढ़ता जाएगा, राइट? हाँ सर समझा। Because A is getting consumed. So this represents RF and this represents RB. What is equilibrium then? This, when RF is equal to RB, this point is equilibrium. और उसके आगे भी आप अगर देखोगे तो आगे भी इक्विलिब्रियम ही रहेगा। तो ये देखो x एक्सिस पे TEQ लिखा है, TEQ represents the time at which equilibrium is achieved. So when these two curves meet each other, the values are equal. That is why they're intersecting at that point. So rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction at equilibrium. इसके लिए equilibrium ये वाला point है जो यहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है EQM, और उस corresponding time को बोलते हैं TEQ, because at that TEQ equilibrium has been achieved. Is it clear? मार्क कर लो अच्छे से ये ग्राफ के अंदर कौन सा RF है कौन सा RB है। सर रेट मतलब मास अपॉन टाइम ना? नहीं, रेट मतलब होता है, वो एक्चुअली 12th में है, रेट मतलब होता है ये चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम, माइनस लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए, सो माइनस DA अपॉन DT इज कॉल्ड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A. ओके सर। तो अगर मैं ये बोलूं सिंपल वर्ड्स में कि A में शुरुआत में X मोल्स थे, कुछ टाइम बाद Y मोल्स है, चलो टाइम का वैल्यू ले लेते हैं 5 सेकंड्स, तो रेट क्या होगा इस दौरान, रेट क्या हुआ है, सो इन दिस इंटरवल रेट इज इक्वल टू माइनस y माइनस x अपॉन 5, ये हो गया आपका रेट। ओके, मान लेते हैं 1 ही लीटर है वेसल का, 1 लीटर इज द वॉल्यूम। एनी डाउट? Now y माइनस, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि y इज लेस देन x, रिएक्शन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन हो रहा है, तो x से तो y कम ही रहेगा ना, क्योंकि a कंज्यूम हो रहा है। a अगर कंज्यूम हो रहा है तो y जो है वो कम हो जाएगा x से, y माइनस x विल बी नेगेटिव वैल्यू, और रेट को हम लोग कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते, इसके लिए एक एडिशनल माइनस साइन लगा देते हैं। नाउ दिस एंटायर वैल्यू विल बी पॉजिटिव। करेक्ट? वो डिटेल में 12th में आएगा। फिलहाल आप ये देख लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कर्व ऊपर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का कर्व नीचे होगा। जो भी आप चालू करोगे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा एरो का, ऐसा है माना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ P। ओके, rate of consumption of P will be called RF. Next, concentration versus time plot. If Kc is greater than 1, ये क्या है अभी, वही रिएक्शन है, A given B, कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे A का कम होगा क्योंकि A कंज्यूम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे B का बढ़ेगा।
तो वही है, ये A का कम हो रहा है और B का बढ़ रहा है, करेक्ट। इनिशियली ओनली A was present, तो ये डिनोट करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, which is A naught. What is A naught? A naught is the initial concentration of A. इनिशियल मतलब क्या, जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ था तब A का कितना था मोल्स पर लीटर। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? यू नो दैट एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट, दैट इज उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। आप देख सकते हो ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन का लाइन यहाँ पे कांस्टेंट है, इस पॉइंट से ए के लिए और इस पॉइंट से, मतलब इसके बाद और कोई चेंजेस नहीं है। तो आगे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस देयर इज नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे कांस्टेंट हो गए दोनों के दोनों, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट, राइट, दिस टू रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन थे वो भी कांस्टेंट हो गए, करेक्ट। So TEQ is what? TEQ represents the time at which equilibrium is achieved. तो आपको कोई बोलेगा कि अभी इक्विलिब्रियम का रीजन कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे ये पूरे का पूरा शेड कर देंगे, अगर ये डॉटेड लाइन के आगे, तो ये पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम है। डॉटेड लाइन के आगे राइट हैंड साइड में पूरा शेड कर दिया है मैंने, तो ये पूरे का पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम है। और इसके पहले क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं है। और एक चीज आप देख सकते हो, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ज्यादा है, क्योंकि बी ज्यादा ऊपर की ओर है, तो केसी का वैल्यू क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे दिखाना है कि केसी लेस देन 1, concentration versus time graph, if Kc is less than 1, तो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या है फिर से, Kc will be concentration of B at equilibrium upon concentration of A at equilibrium. Now if you see concentration of A at equilibrium is this, and concentration of B at equilibrium is this. तो अभी देख सकते हो आपकी A ज्यादा है, concentration of A is more than concentration of B at equilibrium, तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। Correct. And concentration versus time plot, if Kc is equal to 1,
तो ऐसा हो जाएगा फिर Kc इक्वल टू 1 मतलब क्या, concentration of A is same as concentration of B at equilibrium. So when concentration versus time plot you see for Kc equal to 1, तो ऐसा हो जाएगा फिर. Okay.